हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड preparing for their exams. So first of all, I welcome you all to my new video, that is HSN coding. So for today we are having the new topic for our subject, that is GST, and today we are going to cover with the topic HSN, that is the Harmonized System of Nomenclature. This video will be very useful for all the students who are doing MBA, BCom or BBA courses, right? So HSN coding stands for the Harmonized System of Nomenclature. It is the Harmonized System of Nomenclature, and this Harmonized System of Nomenclature is developed by WCO, the World Custom Organization, which was developed to facilitate international trading system. If we talk about the WCO, World Custom Organization, the main purpose of developing these organizations were to help the persons who are going to make exports or imports. So HSN, Harmonized System of Nomenclature, are the system where we are providing a unique identification to our commodities, and this system is organized or managed by WCO. WCO came into effect in 1988 with the vision of facilitating the classification of goods all over the world in a systematic manner. When we are doing the exports or the imports, there is need to have certain kind of classification for our goods and services. For this purpose, there is need to have the harmonized system of nomenclature. तो बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे कि जो HSN कोड्स हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो हैं, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो 1988 में स्टार्ट हुई थी, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WCO वाज टू make the classification of goods all over the world. This classification is acceptable all over the world for all those countries who are the member of the WCO. So HSN is basically a 6-digit code that classify more than 5,000 products. मोर देन 5,000 प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग HSN कोडिंग्स को यूज़ करते हैं, राइट? ये जो HSN कोड्स हैं, इनको हम लीगल और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में जो है वो अरेंज करते हैं. मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी कि हम लोग कैसे इनको लीगल या लॉजिकल स्ट्रक्चर में HSN कोड के साथ अपनी गुड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट? सो एक यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन लेने के लिए जितने भी HSN कोड्स हैं, दे आर सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड रूल्स एंड इन एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. मतलब जब भी आप एक गुड को HSN कोड प्रोवाइड करोगे तो उस केस में आप कुछ सर्टेन रूल्स हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द WCO, आप उन रूल्स को फॉलो करोगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स आप अपने प्रोडक्ट के लिए HSN कोड्स को डिसाइड करोगे. HSN कोड्स क्या हैं? इट इज़ द क्लासिफिकेशन, और यू कैन से दैट इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन गिवन टू द कमोडिटीज विच कैन बी इंटरनेशनली ट्रेडेड. बेसिकली HSN क्लासिफिकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए, जो आपको हेल्प कर देगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर कौन सा रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करोगे, राइट? जो HSN कोड्स हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं कमोडिटीज़ के लिए. और अगर हम सर्विसेज की बात करें, जो सर्विसेज को हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, सर्विसेज के लिए हम लोग SAC को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सर्विस अकाउंटिंग कोड्स. इंडिया जो है WCO का मेंबर जो है, 1971 से ही इंडिया WCO का मेंबर है, राइट? नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई द HSN कोड्स आर इम्पॉर्टेंट? A first importance of providing HSN code is that it gives a systematic classification of goods.
ये आपके गुड्स को एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देता है। लाइक कि अगर आपके पास कोई भी कमोडिटी है, उसका जो कोड है उससे आप गुड्स को क्लासीफाई कर सकते हो कि वो गुड्स कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, राइट। देन दीज HSN कोड्स कैन बी यूज टू गैदर द डेटा। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वर्ल्ड लेवल पे, विच वॉज अर्लियर वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट, आप विद द हेल्प ऑफ HSN कोड आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप कोड से गुड को आइडेंटिफाई करके गुड्स की डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, राइट। देन it provides a rational basis for the custom tariffs. Custom tariffs means कि when we are dealing at international level, when we are sending goods to other countries, then there is need to have the knowledge of the custom tariffs. So HSN code provides you the rational basis for the custom tariffs. Then the next advantage is that it provides a uniform classification. Every goods are given a one unique number and we can identify goods with that number, right. लाइक जैसे आप अपना एक आधार कार्ड नंबर लेते हो, तो आधार कार्ड नंबर अगर हम लोग फिल करें कहीं पर भी तो आपकी आईडी आ जाती है ना। सेम वे में जो HSN कोड है ये भी एक यूनिक क्लासिफिकेशन है कमोडिटी की, और जब आप उस नंबर को फिल करते हो तो आपके पास GST पोर्टल पे जाके फिल करते हो या HSN कोड फाइंडर पे फिल करते हो तो आपको गुड्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाती है, आपको गुड्स की टोटल डिटेल्स जो है वो मिल जाती हैं। HSN जो है हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं और 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो HSN कोडिंग में पार्टिसिपेट करती है। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड जिन भी कंट्रीज़ में होता है और द कंट्रीज़ हु आर द मेंबर ऑफ द WTO, वो जो कंट्रीज़ हैं वो इस HSN कोड को फॉलो करेंगे, उनके लिए कंपल्सरी है इस कोडिंग को फॉलो करना। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड की 98% गुड्स हैं जिनको HSN कोड्स के साथ क्लासिफाई किया गया है, राइट। सो कितने 98% गुड्स को HSN कोड्स के साथ क्लासिफाई किया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज it is very important to remember that HSN number must be clearly mentioned on the GST invoices when preparing tax invoices for GST। अब जब भी आप कोई भी इन्वाइस बनाओगे एज अ ट्रेडर, जब भी आप कोई इन्वाइस बनाओगे तो आपको उन इन्वाइसेस के ऊपर अपने HSN कोड्स को ज़रूर मेंशन करना है। आप इसके लिए देखो, अगर आप कहीं पे भी कोई कमोडिटी को बाय करने जाते हो, सपोज करो कि अगर आप कोई भी एक मेडिकल शॉप पे मेडिसिन को बाय करने जाते हो, राइट। सो होलसेल अगर शॉप है वहाँ पे आपने अगर मेडिसिन बाय की हैं तो वो आपको एक बिल बना के देंगे, तो आप उस पर देख सकते हो कि बिल पे आपकी जो भी आपने मेडिसिन बाय की हैं उसके कोड्स साथ में मेंशन होते हैं। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बाय करते हो तो उस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो कोड्स हैं वो उसके ऊपर मेंशन होते हैं, राइट। The government gives some form of relief to the small taxpayer with annual turnover up to 1.5 crores। इसमें आ गया कि अगर कोई भी स्मॉल टैक्स पेयर है जिसकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसको HSN कोड मेंशन करने की कंपल्शन नहीं है, ठीक है। नो नीड फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर टू मेंशन HSN कोड्स इन देयर टैक्सेबल इनकम्स और इनवॉइसेस। बट अगर कोई भी आपका टैक्स पेयर जिसकी टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ है, दे विल मेंशन 2 डिजिट HSN कोड, वो अपनी इनवॉइसेस के ऊपर 2 डिजिट HSN कोड को मेंशन करेंगे, राइट। एंड द टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, दे मस्ट मेंशन एट लीस्ट 5 to 6 डिजिट ऑफ HSN कोड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर आपके पास आपकी जो टर्नओवर है एज अ टैक्स पेयर और ट्रेडर, अगर आपकी टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है, नो नीड टू मेंशन द HSN कोड्स ऑफ द कमोडिटीज इन योर इनवाइसेज इन विच यू आर डीलिंग। बट इन केस योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, in that case it is compulsory to mention 5 to 6 digit code in your invoices while dealing in those goods. I hope it is clear to everyone. Now moving to the next slide. Whenever we are making the codes to the commodity, we are giving the unique identification to the commodity. Our HSN codes contain 21 sections, 99 chapters, 1240
254 headings, 5224 subheadings. Right, whenever we are making the HSN classification of our commodities, this is the pattern that we will follow. The pattern is that it must contains 21 section, 99 chapters, 1244 headings, 5224 सब हेडिंग्स. मतलब क्या है कि जिस अगर कोई भी कमोडिटी का अगर हम लोग अगर एक कोड स्ट्रक्चर करते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ HSN कोड है 7606929900. तो इसके जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं दीज आर फ्रॉम 99 चैप्टर. 1 to 99 चैप्टर है, उसमें से कोई 2 डिजिट आपके एज अ चैप्टर लगते हैं. नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं दे आर विद द हेडिंग्स, वो हमने हेडिंग्स लगाई. देन नेक्स्ट 2 डिजिट जो हैं वो सब हेडिंग्स हैं. नेक्स्ट 2 डिजिट्स दे आर रीजनल टैरिफ्स, मीन्स कि आप कौन सी स्टेट से कौन से रीजन से बिलोंग करते हो. एंड द लास्ट 2 डिजिट आर नेशनल टैरिफ, ये कंट्री कोड्स लगते हैं. राइट, अब इसको सिंपली हम कैसे समझ सकते हैं कि जब भी आप एक कमोडिटी का HSN कोड डिज़ाइन करते हो तो फर्स्ट 2 डिजिट जो हैं वो उनके चैप्टर्स के होते हैं. नेक्स्ट 2 डिजिट हेडिंग्स के होते हैं. नेक्स्ट 2 डिजिट सब हेडिंग्स की लगती हैं. नेक्स्ट 2 डिजिट जो है रीजनल टैरिफ, आप किस रीजन से हो. और लास्ट 2 डिजिट जो है वो नेशनल टैरिफ है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो. राइट, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर में 21 ग्रुप्स होंगे, 99 चैप्टर्स होंगे, 1244 जो आपकी हेडिंग्स है उसमें से 2 डिजिट हेडिंग्स के लगेंगे एज पर द कमोडिटी. एंड 5224 जो सब हेडिंग्स हैं उसमें से कोई भी 2 डिजिट जो है आपके सब हेडिंग के लगेंगे एज पर द नेचर ऑफ द कमोडिटी. मीन्स आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, आपके फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, आपके कोई भी गैजेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हैं आपके ये कोड्स जो हैं वो इंटरनेशनली डिसाइड होते हैं, जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं. राइट, सो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर आप GST में अपने इंडिया में जो GST है उसमें अगर आप HSN कोड्स को अडॉप्ट करते हो तो ये आपको सिस्टमेटिक वे में आपकी जो कमोडिटीज़ हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होंगी. लाइक अगर आपने अपनी कमोडिटी पे कोडिंग की है तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप उनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो दे आर ग्लोबली accepted. Then by using these HSN codes there is uploaded detailed each गुड्स फॉलिंग अंडर. मतलब कि अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको गुड्स की डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप एक कोडिंग के साथ ही अपने गुड्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हो. By using HSN code there is no need to upload a detailed description of the each goods falling under the GST. आपको गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपने कोड लिख दिया तो इट मीन्स कि वो पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी. लाइक आप देखो अपने स्कूल्स में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, आपका एक रोल नंबर दिया गया है, तो जब आप उस रोल नंबर को अपने पोर्टल पे फिल करते हो तो आपकी सारी डिटेल आ जाती है. आपका नाम, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है. सेम लाइक अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर कहीं पे फिल करते हो तो वहाँ से आपका जो देखो पूरी डिटेल आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ. तो वही चीज़ यहाँ पे HSN कोड में है जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है. इसमें क्या है कि अगर आप एक कोड को भी फिल करोगे तो वो गुड्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर देता है. राइट, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग ये टेबल वेयर हैं, किचन वेयर हैं, हम लोग ये चीज़ों को डिस्क्राइब ना करके अगर हम ये कोड लिख देते हैं 39249090, तो आप इसको खुद गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो. तो ये कोड इटसेल्फ रिप्रेजेंट नेचर ऑफ द कमोडिटी कि ये कोड जो है वो किचन वेयर है या अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया है. ठीक है, देन दिस अलाउज फॉर ऑटोमेशन ऑफ GST रिटर्न्स, सेविंग टाइम एंड मनी फॉर द टैक्स अथॉरिटी. अब जब देखो आपको कमोडिटीज़ की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, आपको सिर्फ कोड लिखना है, तो ये सेकंड पार्ट पे टैक्स अथॉरिटीज़ को भी हेल्प करता है, उनके टाइम को सेव करता है, उनकी मनी को सेव करता है और GST रिटर्न्स की ऑटोमेशन में हेल्प करता है. इज इट क्लियर? सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप कल अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको यू शुड नो कि आपकी कमोडिटीज़ के कोड्स जो हैं वो कैसे क्लासीफाई हुए हैं एंड हाउ दीज कोड्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरनेशनल ट्रेड. सो अगर आप कोड्स को यूज़ करते हो तो योर कमोडिटीज़ विल बिकम मोर एक्सेप्टेबल एट ग्लोबल लेवल.
So here we are having one picture. This HSN code is 07031010. So this code is for this product. This is the vegetable. जितनी भी आपकी एडिबल वेजिटेबल्स होती हैं वो 07 चैप्टर में आएंगी, राइट। 07 में चाहे आपके अनियंस हैं, पोटैटोज हैं, कैरेट्स हैं, जितनी भी एडिबल वेजिटेबल्स हैं वो हमेशा ही उनकी कोडिंग 07 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट 2 डिजिट इज फॉर हेडिंग वेयर इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज अ अनियन, गार्लिक, लीक्स, इनके लिए आपकी जो हेडिंग है वो 03 लगती है। Next 1010 is the subheading. It is related with the fresh or the chilled onions or the shallots. और the next 10 डिजिट हमने क्या किया कि ये चिल्ड अनियंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, गार्लिक या लीक्स नहीं है, तो ये 10 को हमने 2 बार रिप्रेजेंट करके ये हमारे पास अनियन का एक हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर बन गया, राइट। सो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो भी कमोडिटीज़ होती हैं उनके जो कोड्स होते हैं वो डिफरेंट हेडिंग, सब हेडिंग्स, चैप्टर, सेक्शंस के बेसिस पर फिक्स होते हैं। अब ये कुछ सेक्शंस हैं, जैसे अगर आप HSN कोड सेक्शंस को देखो एज पर GST रूल्स, तो सेक्शन 1 में आपके 1 to 5 चैप्टर्स आते हैं जिसमें सारे लाइव एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो काउंट होते हैं। देन सेक्शन 2 इट इज़ रिलेटेड विद चैप्टर 6 to 14 जिसमें सारी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कवर होती हैं। अब देखो यहाँ लिखा ना 6 to 14, और मैंने आपको ऊपर प्रेजेंटेशन में दिखाया कि यहाँ पे आपकी एडिबल वेजिटेबल है तो इसकी कोडिंग जो है वो 07 से स्टार्ट हो रही है, और जो 07 है आप देख सकते हो 07 जो है आपके सेक्शन 2 में आ रहा है जिसमें चैप्टर 6 to 14 है। सेम सेक्शन 3 कवर्स एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स और ऑयल्स। सेक्शन 4 covers beverages and spirits. Section 5 it is related with the mineral products. Section 6 covers all chemicals and parachemical products. Section 6 देन सेक्शन 7 कवर्स प्लास्टिक, रबड़ एंड आर्टिकल। जितनी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट होंगे, आप अपने घर का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो जो रबड़ से बना हो या प्लास्टिक से बना हो तो उसकी कोडिंग जो है 39 से ही स्टार्ट होगी, आप चेक कर सकते हो। देन आगे कि अगर चैप्टर आप देखो 8, चैप्टर 8 में सेक्शन 8 चैप्टर 41 to 43, इसमें जितनी भी एनिमल हाइड्स और स्किन्स आती हैं वो जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपके सेक्शन 8 में आते हैं। देन सेक्शन 9 में चैप्टर 44 to 46 है जिसमें वुड, कॉर्क, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्ट्रॉ। आप एक स्ट्रॉ का पैकेट लेके आओ, उसके ऊपर जो कोड है वो देखो, वो इन्हीं में से एक चैप्टर से स्टार्ट होगा। देन सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में चैप्टर 47 to 49 आते हैं जिसमें वुड, पेपर बोर्ड्स आते हैं। सेक्शन 11 में चैप्टर 50 to 63 आते हैं जिसमें आपके टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स कवर होते हैं। अब इसके लिए मैं आप बोल सकती हूँ कि आप घर में हैंकर चीफ लेके आते हो तो हैंकर चीफ के पैकेट के ऊपर आप देखो एक वाइट कलर स्टिकर होता है, उस स्टिकर पे अगर आप इसका कोड चेक करोगे ना तो आपको टेक्सटाइल का कोड मिल जाएगा जो इन्हीं चैप्टर्स के बिटवीन स्टार्ट होता होगा, ठीक है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। लाइक आई एम हैविंग द एग्जाम्पल फॉर यू। दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड विद द टेक्सटाइल आइटम। सो हियर यू कैन सी दैट टेक्सटाइल आइटम लाइक इट इज़ अ सिल्क हैंकरचीफ। तो एक सिल्क का जो हैंकरचीफ है उसका जो HSN कोड है 62139090। सो हमने क्या सीखा कि फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो चैप्टर से होते हैं। सो आप अपनी प्रीवियस स्लाइड में चेक कर सकते हो चैप्टर। अभी हमने देखा कि जो टेक्सटाइल आइटम्स है वो कहाँ पे कवर हो रही हैं, चैप्टर 50 to 63 सेक्शन 11 में, है ना। तो आप देखो कि आपका जो हैंकर चीफ है उसका कोड भी 62 है, तो मतलब कि ये आपके सेक्शन 11 में आ रहा है, राइट। आप ये देख सकते हो कि ये सेक्शन 11 में आ रहा है। देन नेक्स्ट 13 इज द हेडिंग, राइट। हेडिंग इज इट इज़ अ हैंकर चीफ। अब देखो टेक्सटाइल आइटम में हैंकर चीफ भी हो सकता है, शर्ट भी हो सकता है, सूट भी हो सकता है। तो हैंकर चीफ के लिए नेक्स्ट हेडिंग लगी आपकी 13। देन नेक्स्ट इज द 90 इज द सब हेडिंग। सब हेडिंग फर्दर क्लासीफाई करता है कि आपका जो वो हैंकर चीफ है वो किससे बना है, मेड फ्रॉम द अदर मटेरियल, ठीक है। देन सब हेडिंग 90 अगेंस्ट 90 इंडिया के लिए हमने यूज़ किया है, 90 मेड फ्रॉम द अदर टेक्सटाइल मटेरियल। मतलब कि अगर कुछ आगे फर्दर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए तो ये टेक्सटाइल मटेरियल्स के लिए आ गया है, राइट। अब अगर हमारा ये सिल्क से ना बना हो, ठीक है, ये कोई कॉटन से बना हो,
फाइबर से बनाऊँ, तो इसके जो कोड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज हो जाते हैं, राइट। सो HSN कोड हमने क्या सीखा कि इट इज़ अ नॉमेनक्लेचर विच हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, और जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल वाइल डूइंग द इंटरनेशनल ट्रेड. इट विल मेक योर ट्रेडिंग globally acceptable, right? So thank you so much. In case of any query or difficulty, you can call me at any time at my number 7696 886 880. Thank you.